most of the people, most of the teammates think shine is basically related to cleaning of and things which are required. यहाँ पे before I go to the 3S, I'll tell you one experience. अगर ये इस स्टेप्स को फॉलो नहीं किया तो क्या हो सकता है, देखिए अगर हमने 1S अच्छी तरीके से नहीं किया तो क्या होने वाला है, कोई तो अनवांटेड चीज हमारे सिस्टम में आने वाली है, करेक्ट। अगर ऐसी अनवांटेड चीज हमारे सिस्टम में आ गई तो 2S में हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए जगह बनाएंगे, करेक्ट। सो देखिए जो चीज लगने वाली नहीं है उसको हम जगह बना रहे हैं, और 3S में क्या करेंगे, हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे. So we are doing a non-value adding activity for those item which is not at all required. So you have to be very careful. 1S ठीक तरीके से कीजिए, then only the 2S will be more effective, then only 3S will be more and more effective, right? Coming back to 3S. 3S में हम क्या करते हैं, basically CS, so that is shine. So we are trying to clean, or rather to maintain the things which are required for my operation, for my workplace. Cleaning is just one part of it. Shining, scrubbing is more than cleaning, right? It's an inspection. तो जब कभी भी मैं क्लीन करने जा रहा हूं with a defined frequency, I'm going to inspect that material as well, whether it is in good condition or not. अगर वो उसका कंडीशन ठीक नहीं है तो I need to raise the alarm कि इसका कंडीशन ठीक नहीं है. Whoever is basically responsible will come to that particular item, will make it necessary changes and make sure that it will be corrected at that point only. देखिए तो क्या हो रहा है, जब कभी भी मैं वो आइटम यूज करने जा रहा हूं, आई नीड टू एंश्योर दैट वो आइटम अच्छी कंडीशन में हो, और ये अगर होता है then only we call it as a good 3S system. So 3S system is not only about the cleaning. Remember this. While cleaning, you need to have inspecting that particular item that is coming into that entire system. Okay? Just I'll read it for your sake of understanding. Show frequency and responsibility of individual and common areas. This is talking about the shine plan. Checking the conditions and readability labels, outlining and other markings. Check that items are placed in orderly and safe manner. Check that tools and equipments are available and in a designated location. Check that supplies and tools are in stock in the designated location. Right? So what are the shine target? तो वो क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो आपको शायद याद होगा कि ऑपरेटर पूछते हैं कि ये क्लीन करेगा कौन, पूरा सॉफ्टवेयर क्लीन मैं करने वाला हूँ, तो डेफिनेटली नॉट, right? He will be more careful about the work area that is coming under him. But there are some other areas which are also part of the shop floor that is being taken care by the shine plan, right? So shine plan के दो ऑब्जेक्टिव हो गए, एक वर्क प्लेस पे जो लगने वाली चीजें हैं उसका मेंटेनेंस, और दूसरा जो वर्क स्पेस में नहीं है लेकिन वो आजू बाजू की जो चीजें हैं जैसे कि वॉल्स है, पिलर्स है, सीलिंग है, विंडोज है, उसका भी हमको मेंटेनेंस करना है, लाइट्स है, राइट? और इसके लिए बेसिकली हम शाइन प्लान डेवलप करते हैं. Now what is the shine plan actions, what it should include? जैसे कि एग्जांपल है डस्ट कैबिनेट या फिर डेस्क या फिर प्रिंटर के पेपर भरना है, that can also come under the shine plan if it is office 5S. एम्प्टी रिसाइकल बॉक्सेस, वेरीफाई सर्विस इंटरवल, जैसे कि ये सर्विस हो रहा है कि नहीं रेगुलरली वो हमको देखना है. टूल्स हमको क्लीन हो रहे हैं कि नहीं, रेगुलर सर्विसिंग हो रहा है कि नहीं, ये हमको देखना है. बहुत बार ऐसे होता है कि ऑयल रिक्वायर रहता है सिस्टम को, राइट, मशीन को, लेकिन वो खत्म होने के बाद ही सबको पता चलता है, देन देयर इज अ फायर फाइटिंग कि ऑयल खत्म हुआ है, ऑयल खत्म हुआ है. तो दैट शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ द 3S शाइन प्लान, करेक्ट. ट्रैश जो डेवलप होता है, डस्टबिन जो डेवलप होता है, भर जाते हैं, उसको क्लीन करने को कैसे करना चाहिए, एंड ऑल दोस स्टफ बेसिकली व्हिच आर कमिंग अंडर the workplace as well as the surrounding area of the workplace. So typically shine plan जब हम करते हैं तो ये पहले सबसे पहले मैट्रिक्स लाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम आगे ऊपर एरिया मेंशन करते हैं, और ये एरिया या फिर ये एरियाज हर एक जोन में आ रहे हैं क्या नहीं वो हम टिक करते हैं. जैसे कि प्रोडक्शन में फ्लोर है क्या है, प्रोडक्शन दिस जस्ट एन एग्जांपल, डोंट टेक कि प्रोडक्शन में सीलिंग कैसे नहीं है, तो हो सकता है दैट इज आल्सो पॉसिबल, बट वेयर एवर इट इज नॉट रिक्वायर्ड दे विल से नो. जैसे कि पैकिंग सेक्शन में डाई स्टोर एरिया नहीं है या फिर शैडो बोर्ड नहीं है तो वहां पे वो रॉन्ग है, और जहां कहां भी ये टिक है वहां पे मुझे बेसिकली उसका शाइन
प्लान तैयार करना है। दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ शाइन प्लान। अगर आप देख पा रहे हो तो व्हाट इज अ शाइन प्लान? ये एरिया स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन से एरिया में हमको शाइन करना है, कहाँ पे करना है, जैसे कि कॉर्नर, नियर ट्यूब्स, नियर फैन, नोटिस बोर्ड। ये कहाँ से आ रहा है वेयर? ये वेयर आ रहा है यहाँ से। क्या क्लीन करना है? इट मस्ट बी डस्ट फ्री, इट मस्ट बी क्रीम फ्री एंड एवरीथिंग। स्पेसिफिकेशन क्या बता रहे हैं कि एग्जैक्टली क्लीन करना है मतलब क्या करना है। आई विल गिव यू माय एग्जांपल। वी वर इम्प्लीमेंटिंग अ 5S इन द फाउंड्री, राइट? सो फाउंड्री में एक 3S का ऑडिट हो चुका था और उन्होंने एक खुद को बहुत अच्छे मार्क्स दिए थे। देन आई आस्क्ड हिम कि आप इसको क्लीन बोल रहे हो, ये जो ऑफिस एरिया इसको क्लीन बोल रहे हो? तो दे सेड यस। तो मैं बोला उनको यहाँ पे तो कितना ग्रीन और ये दिख रहा है मुझे, राइट? तो देन ही सेड तो आपको फाउंड्री में क्या मिलेगा? ग्रीन नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि सफाई करनी है या फिर क्लीनिंग करना है, तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि किसको हम क्लीन बोल रहे हैं, राइट? दैट्स व्हाई इट हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन कि मुझे यहाँ पे डस्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे ग्रीन नहीं चाहिए एंड ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे लिफ्ट के पास मुझे ऑयल नहीं चाहिए, राइट? कॉर्नर्स में मुझे अगेन डस्ट फ्री चाहिए। So what exactly you want under the specification you have to mention over there. Again, what is the method? आप हाथ से करने वाले या फिर कोई इक्विपमेंट यूज करने वाले हो, क्या टूल यूज करने वाले हो, विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी यू आर डूइंग, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिएक्शन प्लान क्या है। अगर आप मुझे पूछोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो ये लास्ट वाला कॉलम है रिएक्शन प्लान। ये क्या बताता है रिएक्शन प्लान? इट इज अबाउट इंस्पेक्टिंग। जब ये मैं कर रहा हूं तब वो जो टूल्स है, जो एरिया है, वहां पे अगर मुझे कुछ गलत दिखाई दे रहा है, सो आई शुड इंटीमेट दैट, आई शुड रेज द अलार्म कि ये अभी ठीक नहीं है। बिफोर यूजिंग इट, ट्राई टू मेक इट इन अ बेटर शेप। ये दिस इज व्हाट माय शाइन प्लान इज। अब कोई मुझे पूछेगा कि ये इतना करने की क्यों जरूरत है, या हाथ ये टूल दिखाने की क्यों जरूरत है? रिमेंबर, इट इज लीन इज ऑलवेज अबाउट द विजुअल वर्कप्लेस। तो अगर कोई नया बंदा आता है और वो शाइन करने की कोशिश कर रहा है, तो ही शुड नॉट बी कंफ्यूज कि मैं ये हाथ से करूं या फिर इसको मशीन से यूज करूं। सो इधर स्पेसिफिकली लिखा है कि ये मेथड है, मुझे हाथ से करना है, if probably cloth use करना है, and then I have to clean it with the help of these things. So you have to make sure that it is so visual that there is not any kind of an confusion in the sign plan. And then that is a checklist, typical checklist। ये पॉइंट कहाँ से आता है? तो बेसिकली ये पॉइंट है। फ्रीक्वेंसी भी यहाँ से डिफाइन होता है, और जब कभी भी ये होता है तो हम इसके आगे चेक करने वाले हैं। दिस इज द साइन ऑफ सुपरवाइजर वेदर इट और दैट वर्क स्टेशन लीडर वेदर इट हैज बीन डन और नॉट। या आप टिपिकली देखोगे तो कौन से भी मॉल में वॉशरूम में हमको दिखाई देता है, या फिर एयरपोर्ट में हमको ये चेकलिस्ट बहुत बार दिखाई देती है। So that is a typical checklist that we have to create based upon the shine plan. I hope that is clear. This is a typical just an example कि कैसे हम again format might be different but the gist of it is basically similar कि क्या करना है, किसको करना है, कैसे करना है, क्या स्पेसिफिकेशन है, मेथड क्या है, टूल क्या है और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। So this is shine plan. Based upon shine plan, ये आपको चेकलिस्ट डेवलप करना है और वो आपके एरिया में लगाना है, so that the person who does the 3S will take that particular thing. So we'll now quickly move to the basically auditing of the 3S system. Correct? So what is the auditing basically tries to tell us? Let us see. Again, zero कब हम देते हैं? जब कभी भी there is a safety issue. So आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है spills, waste, trash, etc. produce unsafe condition. वो शॉप फ्लोर पे ऑयल पड़ा हुआ है तो definitely in a 3S you are going to get a 0 marks. Why? Because there is a possibility of accident. Accident हुआ है क्या? नहीं. Near miss है क्या? Yes. There is a possibility you are going to give 0 mark. Remember, this is the thing that we need to understand. Accident हुआ नहीं है, that is a different part. But accident हो सकता है, that is where an auditor need to keep his eyes on. एक मार्क कब मिलने वाला है? वर्क एरिया एंड मशीन्स आर नॉट क्लीन्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर मुझे वहां पे जाके पता चल रहा है, मैं जब देख रहा हूँ और मुझे ये दिख रहा है कि मैं जब ऑडिट कर रहा हूँ तो मेरी मशीन क्लीन नहीं है, ये किसके अगेंस्ट होने वाला है? शाइन प्लान के अगेंस्ट। मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि मैं
फाउंड्री में जाके देख रहा था कि मुझे एकदम ग्रीन नहीं चाहिए, सो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड प्रोबेबली फ्रॉम दैट वर्क प्लेस. सो ऑडिटर नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप क्लीन बोल रहे हो तो एग्जैक्टली क्या क्लीन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए उसको शाइन प्लान रेफर करना पड़ेगा. When he will get 2 marks, area and equipment cleaned daily. जो equipment यूज हो रहे हैं क्लीनिंग के लिए वो भी डेली क्लीन हो रहे हैं. स्टैंडर्ड वर्क लेआउट इज पोस्टेड एंड मेंटेन, जैसे कि शाइन प्लान वहां पे मेंटेन किया हुआ है, चेकलिस्ट मेंटेन की हुई है, क्या चीज हमको क्लीन करनी है वो भी मेंशन किया हुआ है. देन यू आर गोइंग टू गेट अ विजुअल. डेली इंस्पेक्शन ऑफ प्लांट एंड एरिया ऑकर्स, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जो बेसिकली कवर नहीं हो रहा. एंड प्रिवेंटिव इज बेसिकली अगर आपको हिस्ट्री में ऐसे कुछ चीजें दिखाई दे रही है कि जिसकी वजह से मेरा 3S का स्कोर कम आ रहा था, जैसे कि डर्ट दिख रही थी या फिर ग्रीन दिख रहा था, तो हमने क्या किया है, उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई किया हुआ है या नहीं. तो वो अगर आइडेंटिफाई होके एलिमिनेट हो गया होगा तो वी आर गोइंग टू गेट 5 मार्क्स. इसके लिए मैं एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ. वी वर वर्किंग विद द वन ऑफ द स्पाइस इंडस्ट्री, तो उसमें एक बड़ा ग्राइंडर था और उसके नीचे कुछ मसाला गिर रहा था, राइट. सो उसका शाइन प्लान क्या बोल रहा था कि मुझे नीचे मसाला फ्री होना चाहिए, शॉप फ्लोर पे कुछ भी मसाला नहीं होना चाहिए. बट इन वन ऑफ द इंस्पेक्शन इट इज आइडेंटिफाइड कि वहां पे कुछ स्पाइसेस गिर रहे हैं, मसाला गिर रहा है. सो दे हैव आइडेंटिफाइड द रूट कॉज, और रूट कॉज इससे पता चला कि कहाँ तो भी मशीन को क्रैक आया था एंड वाइब्रेशन इफ सर्टेनली गोज बियॉन्ड सर्टेन रेंज, देन वहां से वो मसाला बाहर गिरता था. So what they did some kind of a preventive action to ensure कि next time वहां से कुछ भी spice नीचे नहीं आएंगे. Then that is basically called as a preventive. So if you observe such kind of a prevention is done on a shop floor, then you are going to get 5 marks on that particular 3S audit, right? So we have covered sorting auditing, we have covered set in order auditing, we have covered shine auditing, right? जहाँ पे हमने अभी देखा कि 3S का ऑडिट कैसे करते हैं. Again, scoring sheet is going to remain similar. Okay, scoring pattern is going to remain similar. हर एक एरिया है जिसका कम स्कोर आए वो सब जोन का होगा, हर एक सब जोन में जिसका कम स्कोर आए वो जोन का होगा, और मेरा ऑर्गेनाइजेशन का 3S स्कोर होगा जो सबसे कम होगा हर एक जोन में. Exactly similar to 1S, 2S and 3S. राइट. देखिए जब कभी भी हम 5S इंप्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमको ये जो 3S है उस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा हमको एक्टिविटी बेस्ड है, राइट. अभी स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, विच इज बेसिकली 4th S. इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द प्रोसेसेस that you need to maintain in order to have good 1S, in order to have good 2S, in order to have good 3S. जैसे कि एक एग्जांपल मैंने 2S में लिया हुआ था कि कोई चीज अगर नई ऐड हो जाती है सिस्टम में जो हमको लगने वाली है, करेक्ट, तो उसका आपके पास क्या सिस्टम है कि वो आपके एरिया में ऑटोमेटिकली आ जाएगा. सो डू यू हैव एनी काइंड ऑफ एन SOP टू ऐड सच काइंड ऑफ ए न्यूली एडेड सिस्टम. ठीक है. ऐसे भी हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमने 1S किया हुआ है उसमें अननीडेड तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ हुआ कि कोई चीज आके पड़ी हुई है, even if you have done the red tagging, then what system do you have to ensure कि आप वो unneeded चीज बाहर निकालने वाले हो. So that every process is basically questioned in standardized, and then it sees that automatically is there any kind of a process which will ensure कि 5US आपका sustain होने वाला है, right? So I'll quickly move from standardized to the sustenance, right? Audit point will cover after this particular thing. So remember, in standardized and sustenance आपको physically कुछ activities वहां पे करनी नहीं है. It is more or less soft part of the system. And the last part is basically sustenance, which basically talks about the 5S. Now sustenance basically focuses on, it should be a process driven, it should not be a person dependent. We do not want any kind of an I'll say champion or a Rajnikant on the shop floor, right? Then suppose if at all a new person joins in, what is the system that we are following so that he will understand our 5S, right? So do you have any kind of an updating training mechanism in your system? Do you have the progress of audit? देखिए क्या होता है, बहुत बार हम ऑडिट लेते जाते हैं and over the period of time it becomes very used to कि अरे ये पॉइंट आने वाला ही है. तो ऑडिट लेते समय ही पता चलता है, होने से पहले ही पता चलता है कि इस जोन को कितने मार्क मिलने वाले हैं. क्यों? क्योंकि सबको पता है वहां पे कुछ तो प्रॉब्लम है,
राइट. सो कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअसली आपको परेशान करते हैं. सो सस्टेनेंस शुड बी एबल टू डू सच काइंड ऑफ एन प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट, कि अगर मेरा स्कोर कंटिन्यूअसली 60 रह रहा है तो आगे वो क्यों नहीं बढ़ रहा. Right here in sustenance we need to question that how we are going to progress our score. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन डेफिनेटली 5S स्कोर एक्ट्स एज एन केपीआई. ये केपीआई क्या होता है हमको रॉय सर ने लास्ट टाइम बताया, इट्स अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्कप्लेस. सो अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मेरा 5S स्कोर क्या है, इज अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. सो मेरा जब कभी भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा तो ये 5S सिस्टम से आना चाहिए कि मेरा स्कोर क्या है विथ रिस्पेक्ट टू माय वर्कप्लेस. दैट कैन बी यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग माय परफॉर्मेंस, राइट. So did you understand what is standardize and what is sustenance? Standardization talks about the processes, so it should be process driven, and 5S talks about sustenance. Any external force should not change your sustenance system, right? And this will make sure that you don't have to create an event of 5S. It has to be a day in and day out activity of 5S, correct? And I'll quickly move towards Office 5S